Bismillahirrahmanirrahim. This is one of the most wanted videos I would say out there. This is going to be a complete guide for AS physics. अब AS physics is one of those realities जो students को hit करती है once they come out of O levels and then they realize कि यार A levels आसान नहीं था, टीचर से ही कहते थे it's not easy getting an A or a good grade in A levels, ठीक है? And this video is for you if you're still struggling, and even if you're not, this will really help you, get a clear mindset कि आपने करना क्या है, कब क्या करना है, ठीक है? It's going to be a little detailed video. I believe it will cross the 10-minute mark, hopefully. And I'm going to be going through all the strategies you have to imply. Up, just let me share my screen. Once you can see my screen, then we'll start with the course. Up, AS physics is nothing like O level physics. Remember, the course is even less than O level physics if I'm being honest. AS physics course is something that I can, if I'm being honest, I can teach within 1 hour or 2 hours in like a marathon class. The course itself is very small. अगर आप काइनेमेटिक्स देखें तो काइनेमेटिक्स में आपके पास तीन इक्वेशन है, तीन फॉर्मूलाज हैं आपके पास, ठीक है? अगर आप सुपरपोजिशन देखें, सुपरपोजिशन में आपका डॉपलर इफेक्ट के दो फॉर्मूलाज आते हैं, या आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज सेपरेशन का आ जाता है एक्स इज इक्वल टू लेमडा डी ओवर ए, या आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, एंड फ्यू अदर formulas थ्रू आउट द कोर्स. द नंबर ऑफ formulas दैट यू हैव आर, यू कैन लिटरली काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स. बट इम्प्लीकेशन कि उसको आपने इम्प्लाई कैसे करना है, आपने क्वेश्चन में उसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न. एंड एएस फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट. AS physics is all about concept. However, this concept can be very easily attained. You do not need those very fancy notes. You do not need to go through again notes. मैं अपने ग्रुप्स में देख रहा होता हूँ, हर बच्चा नोट्स मांग रहा होता है. बस एक बार नोट्स मिल गई, यू जस्ट नीड सम बेसिक नोट्स जिसमें आपको फॉर्मूलाज लिखे हो, दैट इज इनफ. मतलब बेसिक नोट्स भी आपका काम चला लेते हैं अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग. याद रखें, दिस इज प्रैक्टिसिंग दैट मैटर्स. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. Practice is what's going to get you the grade, okay? So now we have 11 chapters in our AS physics, ठीक है? This is a general guide for all P1, P2 and P3. I'm going to be making a step separate video later on for P3. जो practical paper है उसकी separate एक video हम लोग बनाएंगे भी. देखिए, the first you start with physical quantities. The physical quantity, this entire chapter can be summed up in what? 30 minutes at max. And you should, देखिए ये पहला चैप्टर है, इसके तो पास पेपर आपके अभी तक खत्म होने चाहिए ना. Physical quantities and measurement. The first thing that you do is always you have to take a start. A lot of students that are watching this video will be just starting, or they would be at level zero, if I'm being honest. Kiddos, take 2 days. आपको अगर नहीं चाहिए तो इसमें मेरे पास you will find recordings of on my YouTube for this chapter. I believe there are 4 5 lectures I've uploaded for this specific chapter. What you can do is you can just watch them. अगर आप वो भी पूरा देख लें, आपको ये पूरा टॉपिक हो जाता है. इट्स जस्ट वन टॉपिक, बट ऑफ कोर्स देयर इज इट्स अ स्टार्ट. आप कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, एंड वंस यू टेक अ स्टार्ट, दैट इज वेयर आपका शुरू होता है. यू हैव टू गेन दैट मोमेंटम. Unless you gain that momentum, you would never complete your course and you can never get an A. Remember, only 1 out of 5, 1 out of 6 students will be getting an A or an A star in A levels, ठीक है? तो you need to make sure that you are amongst those 5 6 students. You are one of those 5 6, ठीक है, जिसको ग्रेड मिल रहा है. अब कैसे करना है? You have to go for practice. Remember, AS में the practice का best तरीका is you focus on MCQs. The more you focus on MCQ, the easier it is to build your entire concept, ठीक है? तो आप जितना ज्यादा MCQs कर सकते हैं, so physical quantities plus measurement, you can take 2 days for this. This should never take more than 2 days with past paper practice, ठीक है? With past paper practice आपको किधर मिलेगी? You will find that on my YouTube. You can access all those recordings, okay? Then we have kinematics. Kinematics, one of the most difficult chapter, but if I'm being honest, kinematics are जिस बच्चे को concept समझ आ गया ना, there are few concepts that you need to memorize. Projectile motion, equations of motion. Projectile में क्या होता है? ऊपर होता है तो vertical खत्म हो जाती है, नीचे आता है तो horizontal constant होती है, and so on. All those factors that are changing X, Y, Z. Guys, this should never take more than 4 days. You can still master this in 4 days, only 4 days. इसकी भी जो आपके पास प्रैक्टिस है, that has been uploaded on my YouTube. You can just practice them. Those are, I believe, 50 MCQs and 10 theory questions, and that is more than enough for you guys. अगर आप लोग वो भी कर लें तो आपका काम हो जाता है. Followed by dynamics. Dynamics and kinematics एक साथ आता है. Dynamics is mostly your O level stuff. You've already done all of that stuff in O level, ठीक है? तो जो आपने चीजें O level में की हैं, उस पर आपने फिर क्या टेंशन लेनी है, ठीक है? तो आप लोग उसमें, there's only one new thing in this, that is your
2D मोशन, ठीक है। तो दिस शुड नेवर टेक मोर देन 4 डेज। अब ये 4 डेज जब मैं लिखता हूँ, व्हाट डू आई मीन बाय 4 डेज? वन डे यू स्टडी दिस टॉपिक, यू मेक योर नोट्स एंड यू डू सम क्वेश्चंस। पहले दिन में आपसे सवाल नहीं होंगे, दूसरे दिन दोस्तों से पूछें, ग्रुप से पूछें, हमारी जो फ्री कम्युनिटीज हैं उसमें पूछें। आई एम गोना हेल्प यू आउट, एवरीवन इज गोना हेल्प यू आउट। एंड वंस यू डू दैट, दैट इज व्हेन यू रियलाइज। एंड अगेन इसकी भी बात ये कि इसके मैंने चैप्टर्स रिकॉर्डिंग्स अपने यूट्यूब पे अपलोड की हुई, यू कैन एक्सेस देम। देयर 7 लेक्चर्स, 7 लेक्चर्स में आपका ये पूरा टॉपिक A to Z कंप्लीट होता है। देन कमिंग विद द वेरी इजी चैप्टर्स, आई वुड से वर्क, पावर, एनर्जी, forces, density, pressure. Forces, density, pressure के MCQs are very difficult, but theory is very easy. इन दो chapters के लिए guys, you can just go with theory for now. You do not need to focus on MCQs. ऊपर वालों के MCQs करें, concept बहुत अच्छा build होता है। इनको आप अगर आप theory भी कर लें, because your first paper is on the 20th, if I'm not wrong, your P2 is going to be on the 20th May, so you have like 60 days अभी भी। तो you can just, what you need to do is you need to focus on theory for these chapters. आप इनकी theory complete करें, आपका काम हो जाएगा। देन यू हैव डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के लिए आपको अच्छे नोट्स चाहिए, ये याद रखें। दिस इज द चैप्टर दैट यू कैन ओनली लर्न फ्रॉम नोट्स। इसके लिए नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके अच्छे से नोट्स ढूंढें, आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। इफ नॉट, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, एंड यू नीड टू स्टडी दिस चैप्टर फ्रॉम नोट्स। वंस यू आर डन विद दीज नोट्स, आप इसकी सिर्फ थ्योरी करें। डू नॉट गो फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के मुश्किल होते हैं, एमसीक्यू का पेपर बाद में, हम बाद में देख लेंगे उसको। अभी आप थ्योरी पे फोकस करके इस चैप्टर को खत्म करें। अच्छा, दिस शुड टेक फोर दिस इज 10 days, दिस शुड टेक 4 days, 14 days हो गया। दिस शुड टेक मैक्सिमम 2 days, ये 16 days आपके हो गए। नाउ कम्स द मुश्किल वाले चैप्टर, वेव्स फॉर सुपरपोजिशन। ना मैंने ऐसे मुश्किल, ये मुश्किल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बच्चे ने ऐसे ही ना इस पे सर पे सवार किया होता है, बच्चों को पता नहीं इतने मुश्किल क्यों लगते हैं। दिस शुड टेक मैक्सिमम 4 days एज वेल। Why will it take 4 days? Guys, waves is completely what you study in O levels. Superposition, it's something that you need good notes. If you have good notes, you can easily do that. आप इसकी MCQ practice करें, आप इसकी theory practice करें, and if face any problem, ask. Again, इसके भी you can find recordings on my YouTube channel. इसकी भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। This entire chapter has been taught in 4 hours, and then there's also practice videos. ठीक है, तो अगर आप वही एक्सेस कर लें, अच्छा हम इसको 4 के बजाय 5 days भी लिखते हैं, तो अभी तक हमारे कितने हो गए guys? 2 10, 10 to 12, 17 days गाइस अभी। अच्छा, फिर आसानी के लिए एक पहले चैप्टर कर लें, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स विल नेवर टेक मोर देन 1 डे। ये तो इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है कि ये ले 18 दिन में गाइस आपका तकरीबन कोर्स खत्म हो गया। वी स्टिल लेफ्ट विद वन टॉपिक एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी प्लस डीसी सर्किट्स। नाउ दिस चैप्टर यूजली टेक्स सम टाइम, चूंकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। इवन इफ अगर आपके ओ लेवल के कॉन्सेप्ट्स आर नॉट वेरी क्लियर, तो यू विल फेस सम इशू इन दिस। तो गाइज यू कैन गिव 6 days टू दिस। तो दिस विल मेक इट 24, एंड आई एम गिविंग यू 6 days ऑफ बफर। तो बाय द 10th of April ऑल योर टॉपिकल्स विल बी कंप्लीट। अगर आप सिर्फ ये फॉलो करें, आप हर 2-3 दिन में एक एक चैप्टर करें, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। एंड यू नीड टू फोकस 1 डे। आप बेशक इसके एक दिन, आपके पहले दिन एमसीक्यूज करें, एंड द नेक्स्ट, देखें 4 दिन अगर मैं किसी चीज के लिए दे रहा हूँ, एक दिन आप उसके एमसीक्यूज करें, 2 दिन आप उसकी थ्योरी करें, ठीक है। अभी यू कैन फोकस मोर ऑन थ्योरी, एंड यू नीड जस्ट 1 डे फॉर द कोर्स। कोर्स इज वेरी इजी फॉर ऑल दीज चैप्टर्स, ठीक है। एक्सेप्ट वेव्स एंड सुपरपोजिशन, सिर्फ उसमें लंबा होता है, दैट्स व्हाई आई गिव इट 4 days, बट उसकी फिर थ्योरी इज रिलेटिवली इजी। अच्छा, एंड यू कैन ऑलवेज एक्सेस दोस क्लासेस ऑन माय यूट्यूब चैनल। Other than that, guys, once your topicals are khatam, then you start your yearly. And इधर मैं भी बताता चलूँ that my yearly session is going to be starting from the 25th of March, and all those students that want to join, and if they join now, you get an early bird of 12.5k PKR, and then after you, if you join after the 25th of March, you will have to pay 14k PKR. Okay, so this our yearly sessions are also join starting very soon. So if you're interested, you can always join that. You can contact my PA for registration. We'll be completing almost 30 papers yearlies live in क्लास, ठीक है। तो इवन इफ यू फोकस ऑन दिस, तो अगर आपका नहीं भी कुछ हुआ, आप आके मेरी गिल्ली में बैठ जाएं, आपको 30 दिनों के अंदर आपका कोर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड। कवर्ड तो सब कुछ होगा, एंड इवन इफ यू वर्क हार्ड, यू विल बी एबल टू गेट वेरी गुड ग्रेड। ओके, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप 30 ईयरली टीचर के साथ लाइव कर रहे हैं, दैट रियली मेक्स एन इफेक्ट, चेंजेस योर ग्रेड्स। अब ओवरऑल व्हेन आई से दिस गाइस, इसमें एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंसी। ना ऑलवेज से दैट यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। इफ यू स्टे कंसिस्टेंट, आपका ग्रेड हमेशा आ जाएगा, हमेशा हमेशा हमेशा। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। वन यू आर कंसिस्टेंट, आपका हमेशा ग्रेड आता है, मेरी बात याद रखें। एंड विद दैट यू जस्ट नीड अ लिटिल ऑफ मोटिवेशन। मैं हमेशा
मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड कर रहा होता हूँ, जस्ट टू गिव यू गाइस मोटिवेशन कि गाइस यू कैन डू इट, यू कैन ऑलवेज डू इट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आपसे बहुत ना, आई वुड ऑलवेज से स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी गुड एट स्टडीज, उनका ग्रेड आ गया, तो आप लोग तो तब भी मुझे लगता है जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं ना बड़े अच्छे होंगे। ठीक है कि आप लोग कुछ तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो वंस यू आर इन्वेस्टिंग दैट टाइम गाइस, ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है, मेक श्योर करना है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहे। जिधर मसला आता है आस्क योर फ्रेंड्स, जिधर इशू आता है आस्क योर टीचर, जिधर मसला आता है आस्क इन आवर फ्री कम्युनिटी ग्रुप। यू कैन आस्क फॉर द लिंक इन द बायो, ओके, मतलब नीचे मैं लगा भी दूंगा बायो, वाओ वो याद आ गया। कमेंट्स में आप मांगे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा फ्री कम्युनिटीज का। यू नीड टू फोकस ऑन दिस गाइज, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। एंड वन थिंग गाइज, जब भी आपको किसी कम्युनिटी में कोई बंदा कोई क्वेश्चन भेजता है, कुछ भेजता है, एंड somebody answers that, always look at that. You learn so much from the people around you, learn so much from the people around you, you have no idea. So once you follow all these steps, इस तरीके से अपने कोर्स को डिवाइड करके ब्रेक डाउन करके करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वेरी सून यू वुड बी एबल टू कंप्लीट योर कोर्स। एंड विद दैट विल बी एंडिंग आवर AS Physics masterpiece, I would say.